Hello. Let us worship God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Let us continue to hear the word of God. Romans chapter 10, verse 9 and 10. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Let us look to God in prayer. Let us pray. Gracious and loving God, we thank you very, very much tonight for giving us this kind of wonderful opportunity to praise your name. You have been our guide from the beginning of this Christian festival. Yesterday and till today, you have been with us through the Holy Spirit and help us tonight at this time to praise your name and to feel your presence. And we pray for the speaker tonight. You please help him and stand with him, strengthen him, and give him wisdom so that whatever he preaches, whatever he delivers, may be blessing for each and every one of us. We pray all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Now we shall hear announcement from the secretary. Good evening, everyone. Let us hear program for this worship service and the rest of the program. আসুন আমরা এখনের যে এই উপাসনা সভার কার্যসূচি আমরা শুনি এবং বাকি যে প্রোগ্রাম আছে তা আমরা শুনব। এই উপাসনা সভাতে চেয়ারম্যান আছেন রেভারেন্ড কেসি লালমেন্টু। আর এই সভাতে স্পেশাল আইটেম শিলচরের বাইরে থেকে যারা তাদের ট্রাভেলিংয়ের বা যাতায়াতের খরচের মূলত নেন নাই, এই উপাসনা সভা করে অফিস খোলা থাকবে বিশেষ বেবি ওনার কাছ থেকে আপনারা সেগুলো
today and join us this worship service. Please stand from your seat. Mana buka anong dalapa ay katare ko di Christian festival ta nasin mingwa akan bawa na yaw kami okay and about teaching the way. I request anyone who join this worship service ko di single since our single tadi akan bawa na yaw kami single I have left you welcome you this time in this Christian festival in the name of Jesus Christ, and we wish you may receive God's blessing to our program. Now we have a special number from Siljar Sinduk. Now may I invite Siljar Sinduk to present their special number. Okay. Siljar Sinduk tadi spesial number macam bisa.
Singam Arau Pondok Seri Sorna Kodi Diva or Diva Osanu. Now we shall once again sing a song number 14, Santos Marana. We shall sing this song, after which our preacher will take his time. सर्वप्रथम यथा जीवन से होपुले आमार प्रभु जीशु नाम नमस्कार जनालु जय जीशु আজি মই সুন্দৰ সময় সুযোগ মই পোৱা কাৰণে মই ধন্যবাদ জনালো মই অসমীয়া জানো তথাপি বেংগলী মই নাজানো এই কাৰণে আজি অসমীয়া যদি ক'লে কিছুমান বুজি নাপাব ভালকে এই কাৰণে মই হিন্দীকে কওঁ তথাপিও মই বেছিকে অসমীয়াকে মই ঈশ্বৰ বাক্য মই কৈছিলোঁ এই কাৰণে হিন্দীকে অলপ মই টান কিবা লাগিছিলে তথাপিও মই শিকাব খুজিছোঁ আমি সকলোৱে বুজি পাবৰ কাৰণে মই হিন্দীকে মই কথা ক'ব কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম आज मैं आप लोग के सामने में मैं खड़ा कर रहा हूँ परमेश्वर का दया है आज हमारे अंतिम दिन अंतिम समय हो गया उसी का कारण थोड़ा एक दो बात आपके सामने में मैं बोलना चाहूँगा कि जैसा खास करके जैसा हम गीत गाते हैं हम नाच करते हैं इस वक्त में बच्चे लोग अच्छी तरह से सुन लो हाँ कोई मजाक नहीं करना है कोई आगे को ठहरना पीछे को दोहराना ऐसा हाथ मजाक करके नहीं नाचना है हमारे परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं इसलिए ऐसा जगह में अगर ऐसा होने से हमारे हिंदू भाई लोग ने किस तरीक़ा से उन लोग सोचेंगे ख़राब सोचेंगे तो वही नो पंग तेखा कन्ला मनी पोइंटी तक से दिन ला मिला नुइजते छियानते बियाकते खतियनते खतिलविन रिंग लौमी ते पोनन हुआ ती तक से तपथियन कन फकनी तियन छिया थैनान नो पंग हो खान पिता इला अथो में तीखा थुनोई कन नहीं दुआ और ये आज मैं मेरा मन में बहुत वचन आप लोग का सामने में बोलने के लिए जा रहा हूँ और आज मैं परमेश्वर का कृपया से बारिश हम लोग मिला है मौसम अच्छा है ठंडा है इतना गर्मी नहीं है इसलिए कोई नींद भी नहीं आएगा अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन भी आप लोग सुन सकेंगे बोल के मैं उम्मीद हूँ इसलिए आज मैं परमेश्वर के साथ में हम धन्यवाद देना है बहुत ज़रूरी है आज का जो परमेश्वर के वचन हम सुनाने के लिए जा रहा हूँ उसको आज में हमारे जो प्रचारक ने आज दिन में बहुत चीज़ सुनाया चुका था इसमें आज में पार्ट भी जैसा लेसन 2 जैसा हम लोग सुनने जा रहा हूँ आज में हम लोग के विषय होंगे प्रभु यीशु कौन है जो हमारे पिछले में यहाँ में जो तस्वीर हम लोग दिखाया है वो आदमी को कौन है और हम लोग बोलने के लिए कोशिश करूँगा तो परमेश्वर का वचन हम पाठ पढ़ेंगे तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरे पत्र 1 अध्याय 11 पाठ से मैं पढ़ूंगा दूसरे तीमुथियुस 1 अध्याय 11 पाठ की ओर से जिसके लिए
में प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी हरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रार्थना की है जानता हूँ, और मुझसे निश्चय है कि वो मेरे ताकि कि उस दिन तक रखवाली कर सकता हूँ। और हम यहाँ में प्रकाशित व्याख्या की ओर से हम फिर पढ़ेंगे 12 अध्याय 11 पद की ओर से प्रकाशित व्याख्या रिवेलेशन। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर विद्यावान हुए, और उन्होंने अपने प्राणों के प्रिय ना जाना, यही तक ही मृत्यु भी साली। परमेश्वर अपना परे जाने पर सबों के लिए आशीष दे। आए हम प्रार्थना करेंगे। সৰ্বশক্তিমান অসীম দয়ালু মৰমীয়াল ঈশ্বৰ প্ৰভু, আজি তুমি সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰভু, ইয়াতে আমি গোট খাইছোঁ, তুমি জানে কি কাৰণে কিহত কাৰণে ইয়াত আমি গোট খাইছোঁ, সকলোৱে প্ৰভু তুমি জানে। ইয়াত তোমাৰ পবিত্ৰ আত্মা যোগিত আমাৰ ভোজন আমি খাব কাৰণে ইয়াত আমি গোট খাইছোঁ। মই প্ৰচাৰক হওঁ, তথাপিও এই যিমান ভোজন মই দিব নোৱাৰোঁ, তুমি সকলোৱে জানে মই দুৰ্বল মানুহ হয়। এই কাৰণে আজি আমাৰ লগত থাকো, তোমাৰ পবিত্ৰ আত্মা যোগেদি আমাৰ অন্তৰত তুমি কাম কৰিবৰ কাৰণে আজি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। যিমান ইয়াত থকা মানুহবিলাকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ যিমান আছে ভালকে শুনিব পাৰিব কাৰণে, ভালকে বুজিব পাৰিব কাৰণে, যিমান কথা আমি ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিব, প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ দান কৰ। দান কৰতা প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছোঁ, আমেন। आज में मेरा दिल में बहुत चीज़ आया है। अभी 10 मिनट 10 है, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेगा, मगर वह बरसात का है, बाहर इतना तक हम लोग नहीं जा पाता है। जितना छोटा से हम वचन को सुनाने के लिए कोशिश तो ज़रूर करूँगा। जैसा हम लोग यहाँ में आया है, हम देखा है मेरा पहले बार है, ये हमारे साहब के लिए भी पहले बार होगा, और कोई किसी लोग यहाँ में नया से आया है, ये लोग के लिए भी पहले बार होगा। हम देखा है हर जाति यहाँ में हम जमा करके परमेश्वर का स्तुति करना, इससे बुरा चीज़ नहीं है बोल के मेरा मन में हम सोचता है, हम महसूस करता है। कारण मतलब ऐसा है कि जहाँ स्वर्ग में भी उसका समानता है। यहाँ में जैसा स्वर्ग में भी वहाँ में जाति सब हम लोग मिलेंगे। यहाँ में भी हम देखा है कोई किसी ब्रू है, खासी है, करबी है, मिजो है, देवरमा भी है, मेते है, हर व्यक्ति यहाँ में जमा करके हमारे प्रभु यीशु को ये मसीह पूजा के समय में हम प्रशंसा करता है। बहुत खुशी का बात है ये हम देख के हम बहुत अंदर में हम रोते हैं परमेश्वर को प्रशंसा करके। हमारे परमेश्वर भी, हमारे प्रभु यीशु भी इससे भर करके खुशी नहीं होगा बोल के हम उम्मीद है। आज रात में मेरा मन में ये आया है कि जहाँ हम डिब्रूगढ़ में आगे में हम काम कर चुका था, उस समय में एक दिन एक घर हम साइकियानी बोल के हम आसामीज का घर में हम गए थे। तो क्या हुआ वहाँ में, तो उसका छोटा लड़का आया है मेरे पास में, अंकल मूर कारुने नोटुन को पर कीनी दियो, ऐसा हमको बोला है। तो हम पूछा है किस कारण, तो वो बोला है एतिया मने पूजा आही गल, एक कारण पूजा जो आहिले मोर नतुन कपड़ लागे। जब पूजा आने से छोटा बच्चा लोग ने नया कपड़ा उन लोग पहनने में मन होता है। तो हम क्या जवाब दिया है, तो पिछत मैं निश्चय मैं दी दी तथापि एतिया नहय क्रिसमास दिन बच्चा लड़का बाद में हम क्रिसमास दिन में हम खरीद कर लेंगे आपके लिए, ऐसा हम बताया। क्योंकि हम जानते हैं ये पूजा का समय है, उस समय बच्चा लोग भी कोई नया कपड़ा खरीदने के लिए मन होता है, खिलौना खरीदने के लिए मन होता है,
बाजार में जाने के लिए मन होता है, हम जानते हैं। और उतना नहीं बल्कि कोई बुरा आदमी भी क्या होता है, चलो अमी पूजा सबो कारण में जाऊं, वही मन में आ जाता है कि नहीं? कैसा पूजा घर कौन कौन अच्छा अच्छा बनाता है, उसको देखने के लिए मन होता है। यहाँ में सिलचार में करता है कि नहीं मालूम नहीं, वहाँ जोरहाट डिब्रूगढ़ वगैरह में तो कौन सा आदमी कौन सा कॉलोनी अच्छा जो पूजा घर बनाता है उसको कंपटीशन लगाता है, डीसी की ओर से भी पैसा मिलता है। तो देखने के लिए मन होता है, कोई किसी लोग पूजी लिए होता है, चलो जाएगा देखेगा, और कुछ खाने के लिए भी दिल होता है कि नहीं? मगर आज मैं ये हम आपको बोलना चाहूंगा कि आज ये मसीह पूजा है, खाने के लिए तो लायक नहीं होगा, मगर हमारे आत्मिक जीवन के लिए हम खा रहा है, हम हमारे आत्मिक जीवन के लिए हम भोजन खा रहा है। नया कपड़ा अगर हम नहीं है मेरा पास में, और हम पूजा देखने के लिए हम नहीं गए हैं, मगर यहाँ में पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे पास में, उसके द्वारा से ही हम जीवित हैं, उसको हम मानना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इसलिए आज में ये मेरा मन में आया है, और आज में हम फिर बोलना चाहूंगा कि ये हमारे प्रभु यीशु के बारे में, जैसा आज में हम लोग सुना गया था, हमारे प्रभु यीशु किस तरीका से आया है, कैसा उत्पन्न हुआ है। यूहन्ना 1 अध्याय से जैसा परमेश्वर का शिष्य कैसा प्रभु यीशु कैसा शब्दों से ही कैसा उत्पन्न हो गया, उसके बारे में हम लोग सुन चुका था। उतना नहीं बल्कि बहुत लंबा से ही हम लोग सुन चुका था, मन में तो हम लोग सोचता होगा, मगर आज में हम आपको सोचना, आपके सामने हम बोलना चाहूंगा कि सिर्फ मन में ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मा की ओर से हम जानना, ये प्राचित है, ये बहुत जरूरी है, उचित है। हम मन से नहीं बल्कि दिल से जानना। एक दिन हम श्रीरामपुर में गए थे, वो श्रीरामपुर आप जानते हैं, वो रेल स्टेशन तो श्री रामपुर बोल के बताता है। हमारे बंगाली भाई बहन लोग तो आप लोग मालूम होगा, वहां में तो हम गए थे, और वहां में एक प्रिंसिपल के घर में हम गए थे, तो उसमें बड़ा बड़ा वाला किताब रात पे गया है, 3 किताब है, इससे बड़ा होगा। तो हम बताइए क्या चीज है? यह चीज है प्रभु यीशु का कहानी को यहाँ में लिखा है, प्रभु यीशु का बारे में लिखा है, 3 बड़ा वाला किताब में लिखा गया है। तो हम पूछा कौन लिखा है? ये लिखने वाला क्रिश्चियन नहीं है, नॉन क्रिश्चियन है। देखो वो आदमी तो ज्ञान है कि नहीं? इतिहास के रूप में तो ज्ञान है, जरूर ज्ञान है। प्रभु यीशु का कहानी को इतना तक वो लिख पाता है, मगर हम पूछा था वो जो हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ में, वो आदमी क्रिश्चियन है? नहीं, अभी तक नहीं है क्या? नहीं। इसलिए आज में भाई बहन जितना यहाँ में आने वाले लोग, ये हम आपके सामने में हम बोलना चाहूंगा कि सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मा से जरूरी है प्रभु यीशु जानना। इतिहास के रूप से हम गिनती करने से, हम कोशिश करने से, ये छोटे बच्चे लोग ने भी अच्छी तरह से जानता है प्रभु यीशु कौन है। ये 25 दिसंबर में जन्म हुआ, हम लोग मनाते हैं, छुट्टी भी देता है, हम लोग अच्छी तरह से मालूम है। उसका पिताजी कौन है? जोसेफ है। उसका माँ कौन है? मेरी है। हम अच्छी तरह से हम ये सवाल को, हम प्रश्नों को हम बताते हैं, मगर आज में ये आपको हम अनुरोध करता है कि सिर्फ ज्ञान से नहीं, दिमाग ये ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मा की ओर से ही आप जानना प्रभु यीशु जीवित है बोल के हम जानना, ये बहुत जरूरत है। ये चीज को आज में आपको बताने के लिए हम कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आज में जितना यहाँ में आने वाले लोग, ये हमारे प्रभु यीशु को अच्छी तरह से जानना है। एक गीत मिजो भाषा ने बताया है, ये मेरा मन में हमेशा होता है, हम मिजो भाषा से पढ़ेंगे। Nazaret kuat tangwal mel cha I muem mutua piang lominan khat zel twin ke poka mo ve sila chuan lomin ka khat ve ta ni। तो ये गीत को हम हिंदी से अनुवाद करने से नजरेत गांव का खूबसूरत जवान को तुमने देखा क्या, देखने वालों सभी खुश से भर जाते हैं। मैं भी जब से देखा है खुशी से भर गए हूँ। हमारे प्रभु यीशु को जो दिल से आत्माओं की ओर से देखने वालों ने धूप के मारे से ही
उन लोग छुटकारा मिलता है, वो छुटकारा से आजादी हो जाता है, तो उससे शांति हमेशा के लिए मिल जाता है। इसलिए आज में वो प्रभु यीशु को अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए, समझ सकने के लिए, हम दिखाने के लिए आज में आप लोग को हम अनुरोध करते हैं। इसलिए ये वचन को अच्छी तरह से सुनने के लिए आप लोग कोशिश करते रहो। तो आज में सबसे पहले में ये हम प्रभु यीशु कौन है, ये हमारे प्रभु यीशु के बारे में दूसरा धर्म ने भी बताया है। जैसा हम लोग ये क्या है कि दूसरे दृष्टिकोण से यीशु किस तरह का से उन लोग मानते हैं। जो हमारे इस्लाम ने कैसा करता है, वो पवित्र है और उसका पवित्र है और उसका उनवारी से जन्म हुआ है, वो मानते हैं उन लोग। उनवारी से वर्जिन बर्थ, उनवारी से जन्म हुआ है, वो उन लोग मानते हैं। और उसको मिसाया, अभिषक्ता, वो मिसाया है, मगर वो परमेश्वर का एक लौटा पुत्रा बोल के नहीं मान सकता है। वो हमारे इस्लाम धर्म में हमारे प्रभु यीशु है। और हमारे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में क्या उन लोग मानते हैं कि वो पवित्र आदमी है और उसको उजाला दिलाने वाला है। हमारे प्रभु यीशु उजाला दिलाने वाला है, वो गुरु है, अच्छी तरह गुरु है और वो बहुत ज्ञान है और वो दूसरों को प्रेम करने वाला है, मगर वो खास करके परमेश्वर है बोल के नहीं मान सकता है। और उतना नहीं बल्कि हमारे जुडाइज्म में भी उन लोग मानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु को एक गुरु जी है, अभिषक्ता है, एक गुरु जी है, उन लोग मानता है। और एक बहाई बोल के एक धर्म है, उसी ने भी प्रभु यीशु को मानता है, मगर उसको एक नबी के रूप में मानता है, नबी, प्रोफेट, नबी के रूप में मानता है। इसलिए दूसरा धर्म ने भी अच्छी तरह से उन लोग मानता है, जानता है कौन है प्रभु यीशु, वो लोग मानते हैं। मगर आज में हमारे क्रिश्चियन धर्म ने किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु को मानता है, उसको आप लोग को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं ये हम बोलना चाहूंगा कि हमारे प्रभु यीशु विजय मिलने वाला है, इसके बारे में हम बहुत बोलने के लिए मन है। कारण जो हमारे प्राकाशिक व्याख्या में हम लोग 12 अध्याय 11 पद में हम लोग पढ़ा था, मेमने के बारे में, वो चीज ने उसका लहू, उसका गवाही के कारण से ही जो दुश्मन शैतान को जीत लिया बोल के हमको बताता है। वो चीज को हम जानना है, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, मगर हम भूत डरता है कि नहीं, दुष्टात्माओं को हम डरता है कि नहीं। अच्छा, हम क्रिश्चियन है बोल के आप भूत को आप सामने कर सकेगा, आप दुष्टात्माओं को सामने कर सकेगा? कोई किसी आदमी वो अंदर में भूत है बोल के लेके आने से आप हिम्मत के साथ प्रार्थना कर सकेगा? कोई किसी लोग तो कर सकेगा, मगर कोई किसी लोग तो डरता है, क्योंकि भूत ने जो पकड़ा वाला आदमी को देखने से आप लोग पता चलेगा, उसी का वो चीज में हम एक अनुभव हम है। कारण होता है कि जैसा भूत ने कोई किसी को पकड़ने से उन लोग चिल्लाता है कि नहीं, कोई किसी को घाव भी पकड़ता है, उन लोग चिल्लाता है, आदमी को काटने के लिए करता है, कोई किसी लोग तो काटता भी है, तो उसमें आप सामने कर सकेगा, उसको नहीं डर के उसका साथ में आप सामने कर सकेगा क्या? आप मुकाबला कर सकेगा क्या? आप ये चीज को रखो मन में। और नहीं कि बल्कि आप लोग, हम नहीं जानता है कि ये हमारे बंगाली का समाज में जो चीज खराब वाला चीज कितना है हम मालूम नहीं। असमीज में हम बोलेंगे जैसा काला बिल्ली वो जाने से, वो पार करने से हम लोग अच्छा नहीं पाता है। हाँ, और रात में भी कुकुर जो कुत्ता लोग चिल्ला के आने से हमारे कंपाउंड में क्या हम लोग सोचते हैं वो भूत मिला है कि नहीं? तो हमारे ये चीज को हमारे मन में आ जाता है, ये चीज में हम लोग को धरता है। कोई किसी लोग तो कब्रिस्तान में रात में अकेला जाने के लिए धरता है कि नहीं? किसको आप लोग डरता है? भूत को आप लोग डरता है। भूत ने आपको पकड़ेगा, भूत ने आपको ये खराब कराएगा, आपका नसीब को पूरा खराब कराएगा, वो आप डरता है कि नहीं? इसलिए भूत से हम लोग डरता है।
हम लोग बूट का धरता है, धर की मारे से हम लोग जीता है। मगर आज मैं ये हम बोलना चाहूंगा कि जैसा प्रेरणा से आकाशीय व्याख्या भाव अध्याय 11 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु का लहू के द्वारा से ही हम बूट को जीत सकता है, हम विजय मिलता है। ये चीज को हमेशा हम याद रखना है, वो बहुत जरूरी है। हम बहुत जगह हम घूरते हैं, कहीं गांव में तो बहुत चीज यह करने से खराब होगा, हमको भूत पकड़ेगा, यानी हमको भूत ने कुछ तकलीफ देगा बोल के कोई किसी लोग धर की मारे से गांव में रहने वाला लोग हम बहुत देखता है। मगर आज में यह आप लोग आया है, जो हम यहाँ तस्वीर यहाँ में है, जो हमारे प्रभु यीशु का अगर आप विश्वास करने से ये सब चीज का डरना नहीं, उससे हम विजय मिला है। हम कभी डरना ना है, विजय मिलता है। अगर आप भूत जो पकड़ता है, आप देखने से प्रार्थना करो, प्रभु यीशु के नाम से खिलाओ, तो उन लोग भाग जाएगा, उन लोग भाग जाएगा। ये सच्चाई है, ये मिस्सा कोठा न हो सके हो, ये झूठ नहीं है, ये सही है। ये चीज को हम लोग जानना है, क्योंकि कोई किसी क्रिश्चियन है बोल के भूत डरने वाला वो कभी अच्छा क्रिश्चियन नहीं बन सकता है, वो कभी नहीं होता है। क्योंकि हमारे दुश्मन शैतान है। अगर शैतान को दौड़ के आप क्रिश्चियन को कैसे आप पकड़ सकेगा, कभी आप क्रिश्चियन अच्छा क्रिश्चियन नहीं बन सकेगा। इसलिए अच्छा क्रिश्चियन अगर आप बन सकने के लिए आप जानना है, हमारे प्रभु यीशु ने ये शैतान को जीत लिया, क्रूस में चढ़ाया, मर गया, मगर 3 दिन के बाद में जी उठा। वो हमारे प्रभु यीशु है, दूसरा प्रभु यीशु नहीं है, हमारे प्रभु यीशु है। वो प्रभु यीशु ने शैतान को जीत लिया, उसके कारण हम विजय मिला है। इसलिए हम गीत गाता है, प्रभु यीशु को प्रशंसा करके हम गीत गाता है। इसलिए आज में जितना हमारे भाई बहन, जितना यहाँ में आने वाले उपस्थित करने वाले सब लोग को मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा से ये शैतान को हम जीत पाता है। यहाँ बाइबल में लिखा है। और 2 नंबर में हम बोलना चाहूंगा कि यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में हम मिला है। हमारे प्रभु यीशु ने, आज में भी हम लोग सुना है, प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं मार्ग, सच्चाई, मार्ग और जीवन में ही हूँ। अगर मेरा केवल कोई किसी परमेश्वर का स्वर्ग में नहीं पहुंच पाता है। इसके बारे में आजकल तो बहुत जमीला है मीडिया में, क्योंकि हमारे जुबिन गार्ड आप लोग जानते हैं, ये हमारे आसामी सिंगर है, वो क्रिश्चियन गीत को बहुत गाते हैं। क्रिसमस दिन जब आएगा असमीज क्रिश्चियन लोग में तो वो गीत को बजाएगा, बहुत अच्छा वाला गीत गाता है, बहुत सुंदर भी है, क्योंकि उसका आवाज को बहुत मधुर है। तो अच्छे से वो लोग सुनते हैं। तो कोई किसी लोग बोलता है परमेश्वर का प्रशंसा गीत बहुत गाते हैं, वो स्वर्ग हो जाएगा, कोई किसी लोग बोलता है। लेकिन कोई किसी बोलता है वो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होने से यूहन्ना का रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद का ये प्रभु यीशु ने जो कहा है वो झूठ होगा, ये नामुमकिन है, ऐसा लोग बताता है। मगर आज मैं ये हम बोलना चाहूंगा कि हमारे प्रभु यीशु के अलावा आप परमेश्वर पिता के साथ आप नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ पहुंचने के लिए वो एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं। जितना अच्छा काम करो, जितना व्यापारी लोग के साथ में, बिगाड़ी लोग के साथ में पैसा दे दो, जितना अपना जान तक भी कुर्बान करो, मगर प्रभु यीशु अगर विश्वास नहीं करने से आप परमेश्वर के साथ जाने के लिए रास्ता नहीं। इसलिए आज में ये अनंत जीवन आप मिलने के लिए प्रभु यीशु केवल वही है, बाकी ना है, और वो कटु ना है, और ईश्वर प्रभु यीशु है, दूसरा बिल्कुल नहीं है। इसको हम जानना है, क्योंकि अनंत जीवन के लिए जान के लिए कितना आदमी प्रशंसा परेशान करता है। हम देखते हैं जैसा हम लोग जहाँ डिब्रूगढ़ आसपास में रहने का समय में बहुत धान दौलत मिलने वाला लोग आते हैं, उन लोग के पास पैसा है, आईसीयू के रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना डॉक्टर बोलेगा वो नहीं उन लोग बैठ सकता है। एक बार तो आदित्य हॉस्पिटल बोल के वहां में एक मरुआरी आदमी ने हमको
प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। उसी ने क्या बोलता है, हम लोग दान दौलत है मगर कुछ फायदा नहीं है। आप प्रचारक है क्या? हाँ मैं प्रचारक हूँ, अगर आ जाओ मेरा बाबा के लिए, मेरा पिताजी के लिए आप प्रार्थना करो। तो हम जाके प्रार्थना किया, उनके पास में पैसा है लेकिन जान बचाने के लिए वो फायदा नहीं है, उसका कुछ कीमती नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकता है वो पैसा नहीं। इसलिए आज में ये देखो हमारे प्रभु यीशु के द्वारा से आप अनंत जीवन मिला, कितना अच्छा चीज है ये। पैसा से खरीद करने के लिए कोशिश करो, हम धनी आदमी नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, कैसा हम पैसा से खरीद कर सकेगा। इसलिए ये प्रभु यीशु के द्वारा से ये दान, ये जीवन हम मिलता है। ये चीज को पक्का है, वो झूठ नहीं है, ये पक्का है। ये बाइबल ने जो बताए उनको हम बोलता है। और हम बोलेंगे 3 नंबर के लिए, हमारे प्रभु यीशु, ये प्रेरितों के कामों का वर्णन इसमें लिखा है, हम पढ़ेंगे। एक अध्याय 11 पद में यहां में लिखा है, और कहने लगा है कि घायल पुरुषों तुम क्यों हरे स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में पर उठा लिया गया है, जिस रीति में तुमने उसी स्वर्ग की को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा, फिर आएगा। ये हमारे प्रभु यीशु, ये तस्वीर को कौन बनाए हम मालूम नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छा लगा है। एक दिन ऐसा प्रभु यीशु आएगा, जो आप विश्वास के हैं वो आएगा, ऐसा एक दिन जरूर आएगा। कब आएगा हम नहीं जानता। ये मसीह का पूजा समय में आने से हमारे लिए कितना फायदा होगा, है कि नहीं? हम गान गाते समय में आने से कितना फायदा होगा, लेकिन ये स्वर्गदूत जैसा लिखा है फिर आएगा, हमारे प्रभु यीशु फिर आएगा। ये हम बोलने से मेरा दिल भी दुख होता है, खुशी भी होता है। देखो मिशनरी लोग, ये हमारे सब ये जितना पास्टर लोग, मिशनरी लोग, हम लोग इधर में आया है, परेशान है, अभी हम लोग रोता भी है। इसलिए अपना देश छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपना देश में कुछ काम भी है, अपना वहां में भी अपना परिवार छोड़ के भी जाना भी पड़ता है, कितना हम लोग परेशान मिलता है। लेकिन ये चीज ने हमको शांति दिलाता है। थेसलोनियंस में भी पौल ने क्या बताता है, प्रभु यीशु फिर आएगा, उसी से अपना आसपास में शांति चलाओ बोल के हमको बताया है। ये शांति का वचन है, हाँ शांति का वचन है, डराने के लिए वचन नहीं है, आप लोग घबराने के लिए वचन को हम नहीं सुनाया है। ये शांति का वचन है। ये हमारे प्रभु यीशु फिर लौटेंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। तो उस समय में क्या होगा, हम कभी हिसाब करता है, हम मिशन फील्ड में रहने से हम प्रभु हम तो कुछ नहीं है, मगर ये काम तूने हमको दिलाया, कितना खुशी का बात है बोल के हम उनके सामने हम प्रशंसा करके हम धन्यवाद चढ़ाएंगे। उसी तरह आप लोग भी होगा ना, क्योंकि क्रिश्चियन होने के कारण से आपका परिवार ने आपको निकल दिया घर से, है कि नहीं? आपको चुप चुप के क्रिश्चियन बनने के लिए जरूरी हो गया। आप जो बपतिस्मा लिए है, आप लोग का परिवार जाने से आपको तुरंत घर से भगा देगा, आपका समाज में, आपका गांव में रहने के लिए नहीं देता है। एक दिन आलू बाजार में बपतिस्मा लेने वाला लोग भी खेद आया है, वो उधर मोहनपुर तरफ चला गया बाप के डर की मारे से। हम वो सुन के बहुत दुख लगा है, लेकिन वो आदमी भी एक दिन प्रभु यीशु को मिलेगा। वो प्रभु यीशु के कारण से जो तकलीफ उठाया है, जो परेशान मिला है, एक दिन उसका इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये पक्का है। इसलिए भाई बहन जितना यहाँ हमारे प्रिय मित्रों, जितना यहाँ में आने वाले लोग, ये हम बोलना चाहूंगा कि प्रभु यीशु के नाम से आप दुख तकलीफ उठाओ, वो ऐसा व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये बात नहीं है, जरूर उससे मतलब होगा, परमेश्वर से इनाम मिलेगा, वो जरूर है। इसलिए आज में जितना यहाँ में आया है ये क्रिश्चियन फेस्टिवल के लिए, अपना समय, कीमती समय को मिटा के ही यहाँ पर आए हैं।
उसके कारण भी परमेश्वर ने आपको कुछ ने इनाम तो दे दूंगा जरूर। ये हमारे प्रभु यीशु फिर लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। जैसा यहाँ में तो हम लोग प्रचार करते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु का कहानी बोलने से उन लोग भगाता है। घर किराए हम लोग ढूंढने से भी उन डरम आप लोग पकड़ते हैं, क्रिश्चियन मुझना है, हम लोग किराए देनी नहीं सकता है, घर में रहनी नहीं सकता है क्रिश्चियन आदमी बोल के मिशनरी लोग कितना भगाया है हम जानते हैं। आप लोग को भी ऐसा तकलीफ मिला होगा, आप क्रिश्चियन होने के कारण से आप जो पानी ग्लास कोई किसी पिलाने के लिए भी कोई ब्राह्मण लोग ने तो ना मोई ना हम नहीं खाएगा, उन लोग बोलेगा हम नहीं पिएगा, बोलेगा हाँ खाएगा तो असमीज लोग खाएगा बोलता है, पीने वाला को भी खाएगा बोलता है, इसलिए हम खाएगा क्या है? नहीं पिएगा, आपका हाथ से हम नहीं पिएंगे। कारण क्या होता है, क्रिश्चियन के कारण से हमारे प्रभु यीशु विश्वास के कारण से बहुत तकलीफ मिलता है, हम जानता है, हम खुद देखा है, खुद हम एक्सपीरियंस अनुभव क्या है हम। मगर ये चीज को हम आप लोग को बोलना चाहूंगा, आपका गांव में भी आपको तराना करने से भी सताने से भी आप चिंता मत करो। जो प्रभु यीशु आप विश्वास के हैं वो जरूर एक दिन आएगा, आप उससे छुटकारा दिलाने के लिए, उससे बचाने के लिए हमारे प्रभु यीशु फिर आऊंगा, जरूर आएगा। तो उसमें आप खुशी के साथ प्रशंसा करेगा, वो चीज को हम बोलना चाहूंगा। प्रभु यीशु जरूर आएगा, आप उसका मिलने के लिए आप अभी तैयार है कि नहीं? अब ना आपको ये सवाल को पूछते रहो, हर दिन पूछो, हर दिन हर समय अब ना आपको पूछ लो। अगर आज प्रभु यीशु आने से हम प्रभु यीशु को मिलने के लिए लायक हो कि नहीं, हमेशा अपना आपको पूछते रहो। एक दिन प्रभु यीशु जरूर आएगा, जैसा ठंडा दिन आएगा सितंबर दिसंबर जनवरी में तो हम लोग आशा है, हम लोग जानता है ठंडा दिन आएगा, और अगस्त महीना में तो गर्म दिन आएगा, हम लोग जानता है। सिर्फ लिख के जानने वाला नहीं, खुद हम लोग उसको एक्सपीरियंस किया है। उसी तरह प्रभु यीशु को भी वो आएगा, सिर्फ लिख के ये नहीं बल्कि जरूर आएगा, ये बिल्कुल आने का वचन है। इसलिए आज मैं ये चीज को हम बोलना चाहता हूं। और आखिरी के लिए हम बोलना चाहूंगा कि जैसा हमारे यहाँ में तीमुथियुस में लिखा गया था, ये चीज को हम बोलना चाहता हूं। यहाँ में 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 12 में हम मिला था, इसी के बारे में हम आखिरी हमारे समाप्त किया जाएंगे। यहाँ में ये वचन को हम बहुत अच्छा लगा है, और बहुत लोग को ये वचन से उनका दिल को हम हमेशा उनका दिल जो धर है, उनका दिल को जो कमजोर होता है, वो ताकत दिलाने के लिए वचन को हम पढ़ाता है। यहां में लिखा है कि इस कारण मैं धूप को भी उठाता हूं, मगर हम बिल्कुल शर्म नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं है। किस लिए? वो हम जानता है, हम जानता है, किसको जानता है? ये हमारे प्रभु यीशु को जानता है। पौल ने अच्छी तरह से जानता है, शैतान को वो जीत सकता है, वो जानता है, अनंत जीवन उनका पास है, जानता है, और फिर वापस लौटेगा, वो जानता है। इसलिए दुख तकलीफ को उठाने के लिए बिल्कुल शर्म नहीं होता है। ये चीज से आप लोग, ये अंतिम का वचन को हम बोलना चाहता है। अगर हम क्रिश्चियन बन गया, आपका गांव में, आपका घर में क्रिश्चियन के कारण से आप प्रभु यीशु को इनकार करता है कि नहीं, इस चीज को हम पूछना चाहता है। क्योंकि कोई किसी लोग तो धर की मारे से प्रभु यीशु को बारे में बोलने के लिए शर्म होता है। एक दिन हम देखा था गुवाहाटी में, वहाँ पल्टन बाजार में एक होटल में हम लोग खाना खाए थे। तो एक हम अच्छे से जानते हैं वो आदमी क्रिश्चियन है, लेकिन होटल में तो आदमी ज्यादा होता है, उसमें तो क्या बोलेगा, खाना खाने से देने से फटाफट हम लोग खा लेता है। लेकिन हम लोग क्रिश्चियन का नियम क्या होता है, हम लोग प्रार्थना करके हम लोग खाते हैं। लेकिन वो आदमी शर्म हो गया, क्योंकि हम जानते हैं वो आदमी का दोस्त लोग को नॉन क्रिश्चियन है, तो वो थोड़ा इधर उधर देख के खा लेता है। मेरा दिल बहुत दुख लगा है। कारण क्या होता है, किस लिए शर्म लगता है वो आदमी?
प्रभु यीशु के लिए किसने शर्म होता है? दुख उठाना है, तकलीफ उठाना है। प्रभु यीशु के नाम से हम दुख तकलीफ उठाने, बिल्कुल शर्म नहीं होना है। अगर आप शर्म होने से एक दिन प्रभु यीशु आएगा, वो भी आप लोग के लिए शर्म मिलेगा, आप लोग को इनकार करेगा। इसलिए आज में जितना यहाँ में आने वाला लोग हमारे पौल की तरह आप शर्मिंदा नहीं, परमेश्वर के लिए आप दुख तकलीफ उठाओ, कभी हारना नहीं, आप जीतना है, आगे बढ़ना है। हम बढ़ते जाएंगे आगे आगे। गीत ने क्या बताया है? तूफान संकट का समय जब आ जाने से भी हम डरेगा नहीं, हम हटेगा नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे बोल के बताता है। इसलिए आज में ये चीज को आप जानना है, प्रभु यीशु को आपके पास में है, हमारे पास में, हमारे अंदर में जीवित है, ये हम जानना है। सिर्फ ज्ञान से प्रभु यीशु को जानना काफी नहीं है, आपका आत्मा की ओर से जानना वो उचित है, वो जरूरत है। वो चीज को आप लोग जानने के लिए आज में जितना आने वाले लोग भाई बहन जितना लोग हम अनुरोध करता है। आखिरी के लिए एक कहानी बोल के हम समाप्त किया जाएंगे। एक कहानी मेरे मन में हमेशा आता है। एक दादागिरी करने वाला एक आदमी था, वो तो बंदूक पकड़ता भी है, वो बहुत खराब आदमी है, लोग को देखने से मार देता है, मार डालता है, ऐसा आदमी था। तो एक दिन तो उसका मन में, उसका दिल में तकलीफ लगा है, हम भी अपना ये जीवन को भी सुधार के अच्छी तरह आदमी बनने के लिए कोशिश करूंगा बोल के। तो एक दिन हुआ, प्रचारक आए हैं, वचन सुनाता है, वो मानता है, पीछे में वो बैठ के सुनते रहता है वो हमेशा। तो बोलते 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 वो प्रचारक ने हमारे प्रभु यीशु का ये कलवरी क्रूस का कहानी को बताया। तो क्या हुआ? तो प्रभु यीशु तो मार डाला है, रोम आर्मी ने मार डाला है बोल के उसमें वो वचन को समाप्त किया गया था। तो वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया, हम दुनिया में कोई किसी ने हमको प्यार नहीं किया, सिर्फ प्यार करने वाला तो प्रभु यीशु है, उसका कहानी को तुमने हमको सुनाया, मगर अंतिम के समय में वो प्रभु यीशु को रोम फौज लोग ने मार डाला, क्रूस पर चढ़ाया बोल के फिर हमको बताया है। कैसा मेरा जीवन होगा? देखो ये प्रभु यीशु का कहानी को और से आगे नहीं ले जाने से तो तुमको गोली चलाऊंगा बोल के बंदूक से उसको मराने के लिए कोशिश किया। तो वो प्रचारक क्या बोलता है? सुनो, ये हमारे प्रभु यीशु मर गया था मगर जीवित उठा है, वो जीवित है। कहां में जीवित है? मेरा अंदर में जीवित है बोला है। भाई बहनों, आज में जितना यहां आने वाला लोग, शैतान जीतने वाला प्रभु यीशु, अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु, दोबारा आएगा फिर लौटने वाला प्रभु यीशु, हमारे अंदर में जीवित रहना है, वो जरूरी है। ज्ञान से सिर्फ प्रभु यीशु को जानना फायदा नहीं होता है, अंदर में जीवित रहना वो सबसे फायदा है। वो चीज में हमको आगे ले सकता है। प्रभु यीशु का दोबारा आना भी खुशी का साथ हम इंतजार कर सकता है। इसलिए आज में जितना यहाँ में आने वाले लोग, हमारे प्रभु यीशु जब आएंगे तब उस समय प्रशंसा से उसको इंतजार कर सकने के लिए हमारे वचन सभी उनके लिए परमेश्वर आशीष करे। आमीन।
আসুন প্রার্থনা করি আমাদের আসুন প্রার্থনা করি আমাদের প্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম, পবিত্র আত্মা সহযোগিতার শক্তি উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর সাথে বিশ্বের প্রতিটি বিশ্বাসীর সাথে এখন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত সহবর্তী হোক।